Explain what is meant by the time constant of a circuit. Time constant of a circuit containing a capacitor and a resistor. Hana Khan beta, I want you to tell this कि इसकी क्या definition होगी. Hana Khan beta, tell the सर definition जब of वोल्टेज time. 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल रह जाती है. Hasan बताओ. So time required for voltage to fall to 37% of its initial voltage. Same will apply to charge. Same will apply to the other quantity, that is current, but we will go with voltage. ठीक है? तो voltage जो है वो 37% रह जाती है अपनी initial value का. अच्छा, अब इसकी definition अगर हम लिख लें तो it's better. तो आसान, time constant. Time constant is जो भी आएगा वो लिखेंगे, बेशक आता भी है. Represented by tau equals to RC. अच्छा, time, ये फार्मूला लिख देना इस तरह है. Time in which a capacitor will be discharged. आसान, अब यहाँ पे ना मुझे वोल्टेज करंट चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मसला है. मसला ये है कि एनर्जी भी तो है ना, एनर्जी 37% नहीं होती, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन ना करूँ तो काम खराब हो सकता है. समझ आ गई ये बात? सर तो तीनों ही कर दें. हाँ, ये बेहतर होगा. या वोल्टेज लिख दो, क्योंकि देखो अगर एक भी हो रहा है तो बाकी दोनों तो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं. टाइम इन विच अ कैपेसिटर विल हैव a potential difference of 37% of the initial value. So it is time in which a capacitor will have a potential difference of 37% of its initial value or initial potential difference. हाना खान बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे. हाना खान बेटा. अच्छा बेटा, क्लास में मैं जितनी समझा लूं ना, जब तक पास पेपर साथ नहीं करेंगे ना, A2 नहीं होता. अच्छा, a circuit contains capacitors of capacitance 500 microfarad and 2000 microfarad in series. अगली बात, with each other and in series with a resistor of 2.5 kilo ohms. Calculate the effective capacitance of the capacitors in series. So he's asking about what is the effective capacitance of the capacitors which are connected in series. Okay, Hasan? So Hasan, let's draw the circuit first. अच्छा आसान, मैं ट्राई करूंगा कि लैंग्वेज स्विच ना करूं. लेटर ऑन मैं इसको अपने YouTube पे भी यूज कर लूंगा ना. अच्छा, calculate the effective capacitance of capacitors in series. Now what is a circuit? A circuit contains capacitors of 500 and 2000 in series with each other and in series with a resistor of 2.5 kilo ohm. अच्छा, अब जो वो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये रेजिस्टर. हसन, अभी तक ना मैं इसको इस तरह से छोड़ दूंगा. पता है क्यों? क्योंकि उसने मुझे डिस्चार्ज की बात की तो मैं सर्किट डिफरेंट बनाऊंगा, चार्ज की बात करेगा तो सर्किट डिफरेंट बनाऊंगा. अभी तक ये सीरीज में है. समझ आ गई बेटा बात? हसन, यहां तक क्लियर? यस सर. तो ये अभी तक सीरीज सर्किट है या पैरेलल? अभी तक इट इज सीरीज सर्किट. आगे आते हैं. कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज. वो कहता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस. Hasan, in series we will add them or we'll add the reciprocals. What do you say? The reciprocal of the addition of reciprocal. This capacitor is of 500 microfarad and the other one is 2000 microfarad. And Hasan, you should have a calculator. 1 over C will be equal to 1 over 500 plus it would be 1 over 2000.
Hassan, I want an answer. So what is the answer? So 1 upon 400. 1 upon 1 over C or C? 1 upon C. Okay, 1 upon C is, you are saying it's 1 over 400. T. So you used calculator to find that. So in that way, C will become, C over 1 will become 400 microfarad. We are done with that. So Hassan, the capacitance of this part will become 400 microfarad. Hassan, any confusion? No, sir. Okay. Calculate the charge on the capacitor plates when there's a potential difference of 50 volt across the capacitors, across the plates. So he's asking that, no, Hassan, you have to understand, calculate the charge on the capacitor plates when there's a potential difference of 50 volt across the plates. Now this question is confusing. You should tell why. So net charge is 0 on the No. plates. There is another problem. There is another problem. Even if we ignore that factor, he has not cleared whether it's potential difference across one capacitor or it's across both of them. If you read the question carefully, calculate the charge on the capacitor plates when there is a potential difference of 50 volt across the plates. ठीक है? तो अब इसमें Hassan, we are open to take the potential difference across both of them or across one of them. So Hassan, is there any indication that it's across one or across two? No, sir. Any indication about across one or across two? There is no. However, the examiner wants us, we will go with some assumptions. And in your exam, if something is not clear, you can go with assumption because you have no MCQs. Hassan, mera idea samajh aa gaya? Understand this? Yes, sir. So if there is some doubt in the question, you can go with assumption. So we will say, assuming that the potential difference is across both and charge is on one plate. Hassan, even if he is asking the overall charge, now your answer will be correct. You understand my point? Yes, sir. Sir, तो like Any- exam में कोई भी assumption लिखते हैं? The reason is no. You cannot write any assumption if the situation is doubtful. Do you agree that situation is doubtful? Yes. Logically, it should be zero. Because when they ask about the charge on the capacitor plates, it will be zero. So you should write correct answer. The answer that I will go with if I'm sitting in the exam, so I will say 0 coulombs. 0 coulombs. And this 0 coulomb is with assumption or without assumption, Hassan? This is Without assumption. without assumption. So, and the reason to take 0 coulomb as a better answer is that he said plates. Look carefully. But he has not cleared that he's referring to the plates of the two capacitors or the plates, because there are two capacitors, no? If it was one capacitor, लेकिन Hassan एक बात देखो, he said capacitor plates, not capacitors plates. क्या कहते हो? So Sir, बात एक ही होती है. नहीं एक बात नहीं होती ना. The correct answer is 0 coulombs. The correct answer is 0 coulomb and that's it. However, with assumption, तो आसान दोनों तरह से वो आपको नंबर देगा. He has no option. समझ आ गई बात आसान? Yes, With assumption, what was the combined capacitance? बताओ आसान. 400 microfarad. Okay, combined capacitance was 400. आसान, वैसे तुम्हारी क्या ओपिनियन है? इसकी वर्डिंग में वो क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा? मेरे हिसाब से नहीं कर रहा. तो आप दोनों आंसर्स के साथ, but you will clear that कि आप क्या assume कर रहे हैं.
तो चार्ज ऑन वन प्लेट इज्यूम करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो अगला पार्ट है वो इससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली हम फिर चार्ज ऑन वन प्लेट ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आसान कितना आ गया बताओ, कितना कहा हुआ है उसने बेटा? So 50 volts. 50 volt. And why am I taking the overall capacitance? Because I will take the whole circuit. And now when I will solve this, what is formula for Q beta? Q is equal to, बच्चों को ले जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा आसान देखो, formula for Q will be, you know, it's C into V. C into V. So आसान C into V, what is C? 400 microfarad, no need to convert the unit, into beta 50 volt. So it will be, I think, 2000 So microcoulomb. 20,000. आसान कोई confusion? No, अच्छा, sir. हाँ, Sir, answer 20,000. हाँ 20,000 मैं जल्दबाजी कर गया, 20,000 माइक्रोकूलम। अच्छा बेटा, अब पता है किस तरह चलेंगे? जो सिचुएशन है वो ये है कि ऊपर से चार्ज आया था प्लस 20,000 माइक्रोकूलम, यहाँ से प्लस 20,000 microcoulomb, and as a result the charge on the plates will be, अगर हम प्लेट्स पे चार्ज लेते हैं तो आसान क्या होगा? प्लेट्स पे चार्ज इस वाले पे होगा प्लस 2000 माइक्रोकूलम और इस वाले पे होगा माइनस 2000 माइक्रोकूलम। हसान, इस वाले पे प्लस 2000 और इस वाले पे माइनस 2000। The reason is they are in series. If they are in series, they will have same charge. Hassan, any confusion in this? No, sir. ठीक है, हना खान बेटा, कोई कंफ्यूजन है बेटा आपको इसमें? नहीं सर। बेटा इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है बेटा, इसका एक अच्छा सा ना स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। सर बेटा ले ये लिया? आप जिस पेज से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो भी बता देंगे? सर जी बेटा, ये मैंने जो आपको बुक भेजी थी, आप कौन से स्कूल से हैं बेटा? सर रूट से हूँ, मैं सिर्फ पेज पूछ रही हूँ ताकि अगर रेफर करना हो तो देख सकूं। हाँ मैं आपको बताता हूँ, 690 है हसान, बताओ हसान, पेज 690 है, बताओ जरा। Sir, 660 के around था मेरे ख्याल है. 660 बेटा, 660 पे चली जाए, ठीक है पेज सर, 660, थैंक यू। पेज 660। सर अगले जी बेटा आप बताएं। सर आपने जीरो कूलम इसीलिए लिखा है ना, क्योंकि नेट चार्ज जीरो हो जाता है, जितना आता है उतना जाता है चार्ज। मुझे एग्जामिनर ये बता ही नहीं रहा कि वो पूरा चार्ज पूछ रहा है चार्ज ऑन वन प्लेट, ठीक है? तो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मेरे पास मार्जिन ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक? क्योंकि इसमें एग्जामिनर की गलती है, इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं। वैसे एग्जामिनर क्लियर करता होता है, ठीक है? ही विल से चार्ज और ही विल से टोटल चार्ज। जब उसने मेंशन नहीं किया तो फिर आपकी अपनी मर्जी, आप उस तरह लो उस तरह लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी, हसान हमने सेकंड पार्ट कर लिया बेटा, अब आप आ जाए थर्ड पार्ट पे। Calculate the time taken for the charge on the plates to fall 5% of the charge when there was a potential difference of 50 volt across the plates. So basically this question is, अच्छा अब मुझे बताएं, अगर हमने डिस्चार्ज करना है तो क्या हमें सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हसान क्या कहते हो? तो नहीं करना पड़ेगा. माशाल्लाह, तो डिस्चार्ज कैसे होगा? देखो बात सुनो, पहले उसने बात की है चार्जिंग की। चार्जिंग में सेल जरूरत होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा. चार्जिंग में सेल जरूरत होगा, ठीक है? तो ये 50 वोल्ट, अब ये हो गई चार्जिंग। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर. तो अभी तक तो चार्जिंग की बात हुई है ना, कि चार्ज कितना आएगा, वोल्ट कितना होगा एंड ऑल ऑफ दैट। डिस्चार्जिंग में सेल को तो उतारना पड़ेगा, क्या कहते हो? क्या सेल अगर लगा हो तो डिस्चार्ज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, सेल को उतारना पड़ेगा। तो डिस्चार्जिंग के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम कैपेसिटर्स को, मैं आपको दो सर्किट बना के देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि बात है क्या। ये रजिस्टर लगा हुआ है ना, अब मैंने ये किया कि सेल को उतार के ये सर्किट ऐसे बना दिया। अब आसान, ये जो रजिस्टर है ये पैरेलल में काउंट होगा, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्ट मिला के इसके वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड, आप इसको अगर सीरीज भी कहते हैं तो इट विल वर्क बिकॉज ऑफ कि इसका करंट सेम है। तो करंट के सेम होने की वजह से आप सीरीज भी कह सकते हैं। सिंगल डिवाइस हो तो आप उसको सीरीज पैरेलल दोनों कह सकते हैं। ठीक है जी आसान?
जब सिंगल डिवाइस हो तो सीरीज और पैरेलल दोनों चलते हैं। अब ये हो गया हमारा सर्किट, और इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन हम बनाएंगे वो होगा दोनों कैपेसिटर। अच्छा, ये हो गए दोनों कैपेसिटर, और रेजिस्टर आप नीचे बनाओ या इधर बना दो, इट विल वर्क। तो आसान, हम इन दोनों कैपेसिटर्स को ट्रीट करेंगे एज अ सिंगल कैपेसिटर और टू कैपेसिटर्स फॉर दिस पार्ट। So So single those capacitor. as a single capacitor of what capacitance? 400। सर 400. जी बेटा आप बताएं। सर डिस्चार्जिंग के लिए हम सीरीज और पैरेलल दोनों में लगा सकते हैं या इज इट कंपल्सरी टू पुट इट इन पैरेलल? फर्ज करें हम A1 में वापस जाते हैं, आपको क्या लगता है ये सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है? आप क्या कहेंगी? आप इसका A1 से बता दें, फिर मैं इसका बताता हूं। हसन, सीरीज और पैरेलल? Series. बाय प्रिंसिपल आई विल गो विद पैरेलल। मैं उसकी तुम्हें वजह बताता हूं। सीरीज में डिवाइसेस की जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड होती है। यहाँ पे सेल की जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर पे जा रही है। तो ये आप इनको सीरीज करंट के सेम होने की वजह से कह सकते हैं, लेकिन बाय प्रिंसिपल अब ये पैरेलल है। पैरेलल की वजह ये है कि इनका जो वोल्टेज है वो सेम है। ठीक है जी हसन? Yes, sir. सीरीज हम तब कहेंगे जब दोनों पे वोल्टेज के डिफरेंट होने का मार्जिन होगा। जब दोनों पे वोल्टेज के डिफरेंट होने का मार्जिन होगा तो हम उनको सीरीज में कहेंगे। आप यूं समझ लें कि रेजिस्टर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के साथ सीरीज में है, लेकिन कैपेसिटर्स के साथ एज अ होल लेंगे तो पैरेलल में है। तो अब ये रेजिस्टर कितनी वैल्यू का है हसन बताओ? 2500 ohms. 2500 ओहम्स है। 2000 ओम है यार, क्या कर रहे हो? हाँ 2.5 किलो, 2.5 किलो। आना खान बेटा, कंबाइंड कैपेसिटेंस कितनी है? सर 400 माइक्रोफैरड। 400 माइक्रोफैरड। हसन, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं sir. अच्छा यार, मैं ईज के लिए दोनों कैपेसिटर्स को एक से रिप्लेस कर दूं हसन, Yes, sir. तो हमारे लिए सर्किट आसान हो जाएगा अगर हम दो की जगह एक कैपेसिटर बना दें और रेजिस्टर के थ्रू उसको डिस्चार्ज करें। पहले उसको चार्ज कर लिया, अब ये जो है ये है 2.5 किलो ओहम्स, और ये अकेला कैपेसिटर है, इट्स 400 माइक्रोफैरड, और इस पे आपने 50 वोल्ट का वोल्ट लगाया हुआ है, और चार्ज आप पहले ही निकाल चुके हैं। आसान, चार्ज क्या था बताओ? Sir, 20,000 microcoulombs. छोड़ो जो भी था, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। हना खान बेटा, क्या मैं इनिशियल चार्ज को क्यू नॉट कह सकता हूँ? बताएं यस और नो। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द चार्ज ऑन द प्लेट्स टू फॉल टू 5% ऑफ द चार्ज व्हेन देयर वाज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट्स। हना खान बेटा एक बात बताएं, क्या इस क्वेश्चन के लिए हमें चार्ज की वैल्यू की जरूरत है या नहीं है? वो तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अगर हमने फाइंड ना भी की हो तो विल इट वर्क? क्विक आंसर बेटा, क्विक, टाइम नहीं लगाना। तो चाहिए होगा। नहीं बेटा नहीं। आसान, तुम बताओ चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? तो Q naught cancel हो जाएंगे. सही बता रहे हो बेटा, मेरी बात सुने। आपने चार्ज यूज करना है जो फाइंड किया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये भी तो हो सकता है ना, टाइम और चार्ज। सिंपल। 0 सेकंड पे जो चार्ज है वो क्यू नॉट है। 5% आसान रह गया या ट्रांसफर हो गया? पढ़ो स्टेटमेंट। To fall to 5% रह गया. हाँ, यानी कि जो भी चार्ज था उसको 5% फॉल करने में कितना टाइम लगेगा? तो 5% फॉल करने का मतलब ये हुआ कि Q जो है वो इक्वल होगा 5/100 ऑफ Q नॉट। हसन, मैं सही समझ रहा हूँ? Yes, sir. अच्छा, तो हसन ट्रांसफर कितना हो गया फिर? 95%. ओवर 100 ऑफ Q नॉट। तो टाइम T जो हमने फाइंड करना है उसके ऊपर इट विल बी Q इज इक्वल टू 5/100 ऑफ Q नॉट। हाना खान बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं यहाँ तक। ये जो आपने लिखा है लेफ्ट पे, नहीं राइट पे, ये आपने कैसे लिखा है? ये आप स्टेटमेंट पढ़े ना, आप थोड़ा सा आप अपने आप को भी पुश करें ना, ये स्टेटमेंट पढ़े एक बार। स्टेटमेंट पढ़ा? जी सर। ठीक है बेटा,
बताएं अगर क्यू नॉट इनिशियल चार्ज है तो कितना चार्ज रह गया बेटा? अगर क्यू नॉट है इनिशियल चार्ज है तो जो उसने कहा हुआ है उसको फॉलो करेंगे तो 5/100 ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा ना, और जो ट्रांसफर हो गया वो हो गया 95/100। अना खान बेटा आप बताएं, आ गई समझ? जी सर। अच्छा, अब हम यूं करते हैं कि आर सी का प्रोडक्ट पहले ही कैलकुलेट कर देते हैं। टाइम कांस्टेंट हसन टाइम कांस्टेंट होता है ना, ताकि इसको बाद में इजीली यूज कर लें। तो ये हो जाएगा बेटा 400 इंटू 10⁻⁻6, और बेटा इसका जो है ना रजिस्टर, ये आर सी होता है ना टाइम कांस्टेंट, ये हमने कैपेसिटर पुट कर दिया। मैंने कैपेसिटर पहले पुट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सी आर लिखो या आर सी लिखो, क्यों भाई? आसान मल्टीपल ही हो रहा है ना सी आर। तो कैपेसिटेंस हो गया 400 इंटू 10⁻⁻6 और रेजिस्टेंस हो गई 2500। आई एम यूजिंग एसआई यूनिट्स, तो दिस वन इज इन फेरेड एंड दिस वन इज इन ओहम्स। हसन आई वांट आंसर बेटा, हसन आई वांट आंसर क्विक बेटा। Sir, 400. कितना आ गया बेटा? So one आ गया. 1 आ गया। चले 1 सेकेंड, जब मैंने यूनिट कन्वर्ट कर लिया तो इट विल बी 1 सेकेंड। हाना खान बेटा विल यू वेरीफाई द आंसर? जी सर 1 सेकंड है। ओके बेटा, बेटा कैलकुलेटर ना साथ साथ यूज करते जाओ। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू Q नॉट e पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो बेटा Q जो है ना वो हमारा है, जो रह गया इट्स 5/100, और जो इनिशियल था वो था Q नॉट, और राइट साइड पे आ जाएगा e पावर माइनस टी ओवर हसन, ये तो 1 आ रहा है ना, है टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड है हसन? Yes, sir. तो अब ये बन जाएगा Q नॉट कैंसल, तो ये बन जाएगा 0.05 इज इक्वल टू e पावर माइनस टी। बेटा e को हटाएंगे तो हाना खान बेटा क्या लगेगा जब e को हटाएंगे? सर वो बेटा जब नेचुरल लॉग लगेगा ना बेटा, जब e को हटाएंगे तो नेचुरल लॉग लगेगा ना। तो नेचुरल जी लॉग सर। आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैं पेपर करवाते हुए बहुत ओवरली स्लो हो गया हूँ। 0.05 और e पावर माइनस टी। क्लास में स्लो होना जो है ना वो टाइम वेस्ट करेगा। कॉन्सेप्ट हो गए, अच्छे से हो गए, फिर पेपर में स्लो स्लो चीजें समझो। अच्छा, अब जब मैंने ln ले लिया तो आसान e खत्म या रह जाएगा? So खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू नेगेटिव ln 0.05। सब बच्चे फाइंड करेंगे। हाना खान बेटा बताएं आंसर। सर -2.99 आ रहा है। ठीक है बेटा, माइनस आ ही नहीं सकता, पूरी वैल्यू पुट करें। बेटा ये माइनस आ ही नहीं सकता। आसान तुम बताओ यार, आसान आंसर बताओ यार। Sir, 0.05 क्यों हमने लिया है? Like 95 नहीं लेना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज ट्रांसफर का होता है या चार्ज रिमेनिंग का, ये बताओ। डेल्टा टी है तो फिर हाँ रिमेनिंग होता है. ठीक, सॉरी. माइनस टी ओवर आर सी है ना, ये क्यू रिमेनिंग होता है। हाना खान बेटा ये क्यू रिमेनिंग है या ट्रांसफर्ड? सर रिमेनिंग चार्ज होता है। अच्छा, अब जिन बच्चों को लगता है कि क्लास में जब मैं ये चीजें बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, तो वो बहुत लग जाता है टाइम, वो हसान जो है ना अगर वो भूल सकता है तो दुनिया का कोई भी बंदा फिर भूल सकता है। हसान पेपर में ना ये कंफ्यूजिंग हो जाती है चीजें। तो क्यू हो गया रिमेनिंग और डेल्टा क्यू हो गया ट्रांसफर्ड। हसान अब यार आंसर बताओ इसका। So 3.0 राउंड ऑफ करके एक डिजिट यार और भी बता दो। 2.9957. ठीक है ठीक है ठीक है, 3.0 सेकेंड डन। बच्चों आई थिंक वी आर डन विद दैट। एंड व्हाई द यूनिट इज सेकंड? बिकॉज बेटा हमने एसआई यूनिट यूज की है ना, तो जो आरसी का यूनिट होता है टाइम का वही यूनिट होता है। अगर आप एसआई यूनिट्स यूज करेंगे तो आपको एसआई यूनिट्स मिलेंगे। हसान कोई कंफ्यूजन? अगले सवाल पे चले जाए बेटा। Yes, sir. ठीक है चलें जी हाना खान बेटा, अब हम मिलके ये वाला सवाल करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब इसका एक पार्ट चला गया पिछले पार्ट पे है, पिछले पेज पे, तो पीछे से आना पड़ेगा हमें। चलें जी,